سعادت حسن منٹو 11 مئی سن 1912 کو مشرقی پنجاب کے قصبے سمرالہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام حسن اور والدہ کا نام سردار بیگم تھا۔ منٹو نے امرتسر میں تعلیم پائی۔ نامور صحافی باری علی کی تحریک پر ادب اور صحافت سے وابستہ ہو گئے۔ 26 اپریل سن 1939 کو صفیہ بیگم سے شادی ہوئی۔ منٹو کا بیٹا خالد کم سنی میں ہی انتقال کر گیا۔ بڑی بیٹی نگہت پٹیل سن 1946، دوسری بیٹی نزہت ارشد سن 1948 اور تیسری بیٹی نصرت جلال منٹو سن 1950 میں پیدا ہوئیں۔ ادبی مجلہ عالمگیر کے روسی اور فرانسیسی افسانہ نمبر شائع کیے۔ ریڈیو اور فلمی دنیا سے وابستہ رہے۔ جنوری 1948 میں لاہور منتقل ہوئے۔ 18 جنوری 1955 کو وفات پائی۔ جدید اردو افسانے کے بانی سعادت حسن منٹو نے 300 افسانے اور ریڈیائی ڈرامے لکھے۔ سعادت حسن منٹو کی عظمت اس کے افسانے کی فصول گری سے کہیں بڑھ کر ادیب کے منصب سے مکمل انصاف میں پنہاں ہے۔ عورت کی زبوں حالی، تحریک آزادی، بٹوارا، مذہبی تفرقہ، ریاکاری، سیاسی استحصال، طبقاتی تفریق اور امریکی بالادستی سے تحدید اصلاح تک منٹو نے اپنے عہد کے ہر اہم مسئلے پر تخلیقی رد عمل دیا۔ منٹو کے 100 سالہ جشن پیدائش پر حکومت پاکستان نے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ آداب۔ پی ٹی وی کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہمارے پروگرام میں ایک خاص بات ہے۔ ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ایک ایسا شخص جسے ہم سے رخصت ہوئے 68 برس گزر چکے ہیں، جسے اس دنیا نے جینے کے لیے صرف 42 برس 8 ماہ اور 7 دن دیے، لیکن جس نے سوگندھی کو، سلطانہ کو، گوپی ناتھ کو، ایشور سنگھ کو، کلونت کور کو، ممی کو اور ان گنت کرداروں کو صدیاں بخشی ہیں، جس نے اس زمین کے اردو ادب میں فکشن کی زبان تبدیل کر دی، فکشن کا لہجہ تبدیل کر دیا، اس قدر کم عمر میں اتنا بڑا نقش چھوڑا ہے۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے، سعادت حسن منٹو کی طرف ہے، اور آج پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں فیض صاحب کے لفظوں میں ساڈے گھر دولتاں آئیاں نے۔ ہمارے ہمراہ موجود ہیں سعادت حسن منٹو صاحب کی تینوں صاحبزادیاں، محترمہ نگہت، السلام علیکم۔ السلام علیکم آپا، آداب، محترمہ نزہت اور محترمہ نصرت جلال۔ تو ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ منٹو صاحب کے کچھ ذات کا ذکر ہوگا، کچھ منٹو صاحب کے فن کا ذکر ہوگا، اور ہم اس شخص کو بطور ایک باپ کے، بطور ایک انسان کے تلاش کرنے کی، کھوجنے کی، دریافت کرنے کی کچھ کوشش کریں گے، جو اردو پڑھنے والوں اور اردو لکھنے والوں کا محسن تھا۔ سعادت حسن منٹو، آداب۔ آداب۔ میں پہلے سوال کر لیتا ہوں نصرت آپا سے، نصرت جلال صاحبہ۔ جی۔ آپا، ایک بات کہی جاتی ہے کہ منٹو صاحب کی طبیعت میں جو تخلیقی، جو وفور تھا، جو بہاؤ تھا، اس کا بہت گہرا تعلق ان کے بچپن سے ہے۔ وہ بچپن میں سے جو ہے وہ ایک خاص گھریلو ماحول اور امرتسر کی جو ثقافت تھی، اس میں جو ہے اس نے منٹو کے ذہن کو یہ راستہ اور یہ سمت دی تھی۔ آپ کچھ فرمائیے۔ جو میں نے اپنی پھوپھی سے ان کے بچپن کی باتیں سنی ہیں نا، کہ ان کے اندر جلد بازی بچپن سے تھی، تو اسی لیے میرے خیال میں ان کی کچھ رجحان بھی اسی طرح بنا کہ وہ اپنی جو بھی ان کی
کہنا تھا, جو بات کہنی تھی وہ اختصار سے کرتے تھے. اور مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاعری ہوتی ہے نا, ویسے ان کو بھی ایک قسم کی آمد ہی ہوتی تھی, کیونکہ ان کی جو تحریریں بھی ہیں, اگر ان کے مسودے دیکھے جائیں تو ان میں بہت کم کاٹ چھانٹ ہوتی ہے. تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے ذہن میں آلریڈی وہ کہانی بنی ہوئی تھی جو انہوں نے سنانی ہوتی ہے اور آگے پیش کرنی ہوتی ہے. منٹو صاحب نے خود اپنے بارے میں کہہ رکھا ہے, افسانہ مجھے لکھتا ہے. جن لوگوں نے دہلی ریڈیو اسٹیشن میں ان کے ساتھ کام کر رکھا ہے, ان سے ہر ایک کا بیان ہے کہ وہ ٹائپ رائٹر پہ لگاتے تھے اور کہتے تھے بولو کس عنوان پہ, اور پھر ٹائپ کرنا شروع کر دیتے تھے اور لکھ کے روانی. تو یہ تو اسی شخص پہ ہو سکتی ہے نا جس کا تخلیقی جو شعور ہے اور جس کی مہارت جو ہے وہ اس سطح پہ پہنچی ہو. منٹو صاحب کے والد کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر مشکل سے کوئی 18 برس تھی, اور رسمی تعلیم ان کی زیادہ نہیں تھی. میٹرک تک انہوں نے تعلیم پائی, پھر وہ کچھ دیر کے لیے علی گڑھ گئے اور ان کا کچھ صحت کی خرابی تھی, کچھ عرصے کے لیے کشمیر گئے. 1933 میں وہ واپس امرتسر تشریف لے آئے. کیا ایسا ہوا کہ ایک شخص اس طرح سے اپنے زمانے کی جو روح ہے, جو ان کے عہد میں جو کچھ دنیا بھر میں ہو رہا تھا, جو غیر ملکی حکمرانوں کی یہاں موجودگی تھی, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ کیا اثرات ہوں گے جس نے اس شخص کے ذہن میں ذہانت کا یہ درجہ پیدا کیا؟ میرا خیال ہے دیکھیں جی, یہ تو بہت کم لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ میرا خیال ہے اللہ کی دین تھی. دس از واٹ آئی تھنک, کہ وہ میرا خیال ہے آبزرو کر رہے تھے کہ بھی جو بھی کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ اسی کو پھر لکھتے بھی تھے. جی, میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ عرض کیے دوں کہ جب جالیانوالہ والا باغ ہوا ہے 1919 میں, تو منٹو صاحب کی عمر بمشکل 7 برس ہوگی. افسانہ ہے ان کا 1919 کی ایک رات. پھر ان کا افسانہ ہے نعرہ, تماشا, جہاز جو اوپر سے گزر رہے ہیں. تو کیا وہ مشاہدہ ہوگا؟ سب سے زیادہ تو آپ کو منٹو صاحب کو دیکھنے کا موقع ملا نا باقی بہنوں کے مقابلے میں. آپ نے زیادہ وقت ان کو دیکھا, اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ منٹو صاحب کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو شفقت ہے وہ بھی ضرب المثل کہی جاتی ہے. آپ دیکھیں وہ کیسے ان 3 چھوٹی چھوٹی گڑیاؤں کو جو ہے نا وہ گھیرے میں لے کے, بیٹیوں کے ساتھ جو ان کی تصویریں ہیں, یہ جب گھریلو ماحول میں ہیں تو وہ ایک بالکل شانت اور پرسکون شخص ہیں. اور وہ اپنے آخری زمانے میں بار بار ذکر بھی جو کرتے تھے میری بیٹیوں کا کہ مستقبل کا کیا ہوگا. وہی نا, امی جان کو تو ملتا ہی نہیں تھا معاوضہ کوئی. جی ہاں. تو پھر ابا جان کو بھی وہ قدرت اللہ شہاب نے سنا تھا کہ ایک آئس فیکٹری الاٹ کرتی تھی, تو وہ بھی کہتے تھے میرا کیا اس کے ساتھ تعلق. تو اور ویسے بھی کہتے ہیں جو الاٹمنٹ کے پیپرز تھے اس میں بھی اتنا جھوٹ سچ بولنا پڑتا تھا, تو ان کے لیے وہ بہت مشکل تھا. اس زمانے میں تو ویسے بھی انہوں نے ان کو کہتے ہیں الاٹمنٹوں کا بازار گرم تھا, تو لوگ دھڑا دھڑ کر یہی کام کر رہے تھے. تو ایک بنیادی یہ جو نقص ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کا نہیں تھا وہ آپ نے اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا. اور اس کا منٹو صاحب کو بہت قلق بھی تھا, افسوس بھی تھا, اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے جو یہاں پہ غالباً وہ جنوری 48 میں تشریف لائے. نگی باجی اور میری امی وہ سمندری جہاز سے میرے ماموں کے ساتھ وہ کراچی پہنچے تھے. اچھا, اور کراچی سے لاہور آئے. جی جی. تو منٹو صاحب اس وقت بامبے ہی میں مصروف تھے, اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو کمال امروہی کی فلم وہ غالب تھی, مرزا غالب اس کو بعد میں چل کے ایوارڈ بھی ملا تھا, اس کو بعد میں, مگر وہ آ چکے ہوئے تھے. وہ اپنے وقت سے بہت آگے کے انسان تھے. وہ چونکہ معاشرے میں جو منافقت پھیلی ہوئی تھی, انہوں نے تقسیم کے فسادات کو جسے سے دیکھا. 2018 میں بی بی سی نے جو پچھلے 100 برس کے 100 بہترین افسانے
चुने हैं उनमें मंटो साहब का अफसाना टोपा टेक सिंह जी शामिल है। हाँ जी। और भाई इसी परेशानी जो यहाँ पे थी इसका बहुत खुला, यानी कैसे पसंद कर सकता था यहाँ का हुक्मरान तबका कि कोई खोद दो लिखे हाँ जी। और उनकी मुनाफिकत के पर्दे चाक करे, कोई अल्लाह का बड़ा फजल है लिखे, कोई जो है वो शहीद सास लिखे। शहीद सास तो मेरा फेवरेट्स में से प्लीज जरा उसके शहीद सास के बारे में आपके क्या? वही जो मैंने कहा, वो कहता है कि मैं कुछ चाहता हूँ कि मरने से पहले, एक ठेकेदार होता है जी हाँ। जो कहता है कि मैं कुछ नेकी कमाना चाहता है, तो वो बस एंड में उसको और बहुत से काम करने की कोशिश करता है, तो आखिर में वो कहता है मैं एक नाकिस बिल्डिंग बनाऊंगा और वो जब गिर जाएगी तो उसमें जो मजदूर जो सारे काम करते हुए वो शहीद हो जाएंगे, तो कहता है मुझे इसकी शहादत का मुझे इसका सवाब मिलेगा। मंटो उनकी साहब का शहादत तखय्युल देख रहा था कि हम आगे चल के यही किया करेंगे कि इतने मर गए और इतने शहीद, तो अभी शहीद तक सब हो रहा है ना, हो रहा है। जो हाँ, एक बंदा जो उसको कह रहा है कि मर गया, दूसरा कह रहा है नहीं ये शहीद हुआ है, तो ये भी तो है ना कि कौन उनकी किसका क्या रुतबा। उनकी आंख देख रही थी इसको। जी। जो शख्स बॉम्बे में नफीस दोस्तों के साथ बैठता उठता था, जिसके घर में आसूदगी थी, जो अपनी रोटी रोजी के लिए जो है वो फिल्मों में की कहानियाँ, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिखते थे और अपनी फुर्सत में जो है वो अपना तख्लीकी काम करते थे, अपना अफसाना लिखते थे। उस शख्स को पाकिस्तान में आने के बाद रोज़ाना के जो वसाइल चाहिए थे माली, उसके लिए अफसाना लिखना पड़ा, अखबारात में कॉलम लिखने पड़े। तो क्या इससे उनकी घरेलू ज़िंदगी पे, उनके अपने सेहत पे कोई असरात पड़े? आपने कुछ आपको कुछ याद हो? आई डोंट रिमेम्बर हिम, बिल्कुल भी नहीं मुझे उनका कुछ भी याद। क्योंकि कम से कम एक मजमुआ तो उनका ऐसा है जिसके बारे में आपा उन्होंने खुद लिखा है पेश लफ्ज़ में कि हर अफसाने के आखिर पे तारीख मौजूद है। जी जी जी। और वो जो अफसाने हैं वो हर रोज हाँ जी, एक अफसाना जो जरूरत के तहत लिखे हैं। जरूरत के तहत जो लिखा गया। लेकिन हैरत है कि जितने अफसाने मंटो साहब के दर्जा अरूज और कमाल पे पहुंचे हुए पाए जाते हैं 1937 से 47 तक के, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद लिखे। जी बिल्कुल जी, क्योंकि वहाँ पे फिर वो फिल्म की तरफ चले गए थे ना, और वो इकोनॉमिक सेंस ज्यादा था उसमें, और उसको वो इतनी अहमियत भी नहीं देते थे कि अगर उसमें कुछ रद्द-बदल करना है तो वो कहते थे ठीक है मान जाओ इसको, कोई बात नहीं। क्योंकि मगर जो उनके अफसाने थे जहाँ तक वो तो वहाँ पे तो एक लफ्ज़ नहीं, हाँ इधर उधर नहीं करने देते। जी जी। ये बहुत नौजवानी में, क्योंकि वो सिर्फ यही नहीं करते थे कि खुद काम कर रहे थे, वो अपने दोस्तों को भी साथ लेके जाते थे। कासमी साहब को बहुत गाइड किया, बुलाया, कृष्ण चंद्र को बुलाया, और जो आपने फरमाया ना कि फिल्मी कहानी में वो तवज्जो नहीं देते थे ज्यादा, उनका एक जुमला जो सेठ ने अगर बदलना है तो मान जाओ कह दिया उनका। यहाँ कोई मौलाना सलाहुद्दीन अहमद और हामिद अली खान साहब नहीं बैठे हुए हमारा काम देखने को, ये सेठ साहब जो है वो लिखने वाले को चोपड़ी वाला कहता है। सफिया आपा जो आपकी वालदा थी और मंटो साहब की अहलिया थी, वो मंटो साहब की वफात के बाद 22 बरस तक हयात रहीं। वो शख्स जिसे बाहर की दुनिया कहती थी कि ये बेबाक है, ये मुंह फट है, ये किसी का जो है वो लिहाज रखे बगैर जो दिल में होती है वो कह देता है। आपा सफिया यानी अपनी अहलिया के साथ जो उनका रवैया था वो निहायत खुश अखलाकी का था, और अगर कहीं वो कोई सख्त बात भी कहती थी तो मंटो साहब बर्दाश्त करते थे। बिल्कुल। और अम्मी जान तो ये भी बताती थी, कहती थी कि कभी अफसाना लिखते थे ना तो मुझे कहते थे कि ये तू पहले पढ़, तो पढ़ती थी तो उनकी शक्ल से उनको लगता था कि उनको समझ नहीं आई, तो मुझे उनको कहते थे कि मेरे ख्याल है तेनू समझ नहीं आई, तो वो कहती थी हाँ मैंने नहीं आई, तो कहते इत्थे बैठ मैं तेन समझाना वा जी। तो फिर उनको समझाते थे कि भी ये मैंने ये अफसाना लिखा और एंड इसका ये है। बिल्कुल। और वो आपा अपनी तहरीर के एक एक लफ्ज़ के बारे में क्लियर थे। आप बहनों से तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमें एक वक्फे पे जाना है, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।
सदरंग में एक बार फिर से खुशामदीद, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं सादत हसन मंटो साहब की साहबजादियों से। मैं आपसे अर्ज करूं कि मंटो से पहले और मंटो के बाद आप कोई कहानी उर्दू अदब के किसी तालिब इल्म के सामने रखें, वो बता देगा कि ये मंटो से पहले किया या मंटो के बाद किया। बिल्कुल, मंटो ने अपनी जबान खुद तख्लीक की। बहुत आसान लिखते थे, बहुत आसान लिखते थे, लेकिन सबको वो समझ आती है। सब समझ आती थी, आसान लिखते थे, उनकी जबान पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। वो अपना लफ्ज बना लेते थे, कंटिन्यूटुल्ली, हिपटुल्ला, बड़ा मजेदार है। किधर से किधर ले जाते थे, इसलिए कि गुड़गुड़ती हैं जी ऊपर दी गुड़गुड़ती ऊपर दी गुड़गुड़ती बेतियान दी मूंग दी वाल ऑफ दी हिंदुस्तान ऑफ दी पाकिस्तान। हमें सारे ज़बानी हिफ्स याद था, और वो एक थी कहानी, उसकी बहन थी नहानी, उसका भाई था बसूला। बसूला। हमने बचपन में सीखे हुए थे नर्सरी राइम्स की तरह। अभी तक याद है। मंटो साहब का सियासी शऊर बहुत बुलंद था। जी, मुझे खुद बड़ी हैरत होती है जब मैं पढ़ती हूँ, और दुनिया के हवाले से भी, पूरी दुनिया के हवाले से। चचा साम के नाम खतूत पढ़े, वो अमेरिका पे तंज है। जी जी, और वो तरकीब संत के नाम से जो अफसाना लिखा, जी, जी। वो बेदी और उनके साथियों पे तरकीब संतों पे भी तंज है। ना वो इधर थे ना वो इधर थे। he was too independent minded or very clear about his thinking. और अपनी बात कहने से झिझकते नहीं थे। नहीं, अब ये जो बात कहने में ना झिझकना है, जाहिर है फन इसी से जन्म लेता है। मंटो साहब ने अपना कतबा पहले से बता रखा था। जी कहा यह जाता है कि उनकी जो हमशीरा थी नासरा इकबाल, जी उन्होंने मंटो साहब की वफात पे कहा कि ये ना जी लिखा जाए। जी। वो जरा वो जरा थी। सख्त था। कल ख्याल था। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात। ऐसा हुआ है हाँ ना? जी। अच्छा, एक और बात ये हुई है, हम दिखाएंगे अपने नाजरीन को मंटो साहब का जो कतबा है, जी। जो लौह लगी है जी। सराहने, उसकी इबारत में गलती है। जी बिल्कुल। वो ये पता है, दोबारा मेरे ख्याल में हुकूमत पंजाब ने ना वो कतबा दोबारा से उन्होंने लिखवा के वो गारमेंट लगाया। 60s में कभी हुआ है ये। वो मेरे ख्याल में 67 किसी ने दोबारा लगाया किया। ना ये, और ये मेरे ख्याल में ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कुछ किया है, तो वो गड़बड़ है। वो हमें उसमें पता भी नहीं कि किसने किया है और क्यों किया है, उसमें गलती है। गलती है जी। उसका जुमला नाम कमल है की दो कि दफा। हाँ, की कबर की की, दो- हाँ, और दो ये मत- लॉ भी ऊपर हाँ, लिखा हुआ है। लॉ का। तो लॉ कबर ही की होती है। जी। क्या जुबान इस्तेमाल की, यानी जिस शख्स ने उर्दू को नया लहजा दिया, जी। उसी की कबर की लॉ जो है वो उस पे उसकी जुबान में जो है गड़बड़ है। उन्होंने इजाज़त के बगैर ही इन्होंने खुद ही किया हुआ है। ये हमें नहीं पता कि किस वक्त हुआ और क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने उसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, साइज उसका बदल गया हुआ है, उसके जो कटहरे भी थे वो मुख्तलिफ थे। बिल्कुल पहले बड़ी कॉम्पैक्ट सी थी उनकी प्यारी कब्र। कब्र थी उनकी। जी। कॉम्पैक्ट सी प्यारी कब्र कब्र थी थी उनकी, इतनी बड़ी नहीं थी। फैज साहब ने एलिस के नाम खत में लिखा कि भी सभी फरिश्ते हैं सिवाय मंटो के। यानी मंटो के बारे में हमद साहब ने जो लिखा वो क्रिटिकल था। जी, वो उनकी जिंदगी में शुरू किया हुआ था उन्होंने लिखना। जी बताइए तो कुछ। उन्होंने उनको पढ़ाते भी थे, कहते थे देखो मैंने मामू कहते थे ना उनको, जी, सादत मामू मामा जान, तो कहते थे पढ़ो जो मैंने लिखा है, ताकि अगर वो तनकीद भी कर सकें। तो वो कहते थे नहीं ठीक है जो भी तू लिखा है। जो तो आपने बाकी एंड में थोड़ा सा उन्होंने बाद में ऐड किया था, मगर बाकी का पेशतर जो मैं हमें 3/4 उन्होंने अब्बा जान की ज़िंदगी में ही लिखा हुआ था। ठीक बजा। हमारे मुआशरे में ये बिगाड़ आया है कि अब यहाँ पे ख़ातीन के बारे में टेलीविज़न की स्क्रीन्स पे, सोशल मीडिया पे नाज़ेबा किरदार कुशी वाले तौहीन आमेज़ जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस शख्स पे 3 मुकदमे अंग्रेज़ों ने चलाए और 3 ही पाकिस्तान में चले, उस शख्स की तहरीर में एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिसमें किसी खातून की तौहीन पाई जाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही। हद तक का पहलू हो। बिल्कुल वो तो मर्दों के बालादस्ती वाले मुआशरे की मुनाफकत को आश्कार कर रहे थे।
वो सुल्ताना वाला शंकर हो, आपने वही ना हद तक का भी हद जिक्र तक- किया उसमें, तो उस औरत का जो बेचारी का सौगंधी, जो, हाँ सौगंधी, सौगंधी। उसकी मजलूमियत को सामने लाए। ये फरमाइए, सुफिया आपा की भी रस्मी तालीम तो ज्यादा नहीं होगी? जी नहीं, ज़्यादा नहीं। घर पे इतने लोग आते थे, बेदी आ रहे हैं, किशन चंदर आ रहे हैं, इसमें चुगताई आ रही हैं। बहुत दोस्ती थी अम्मी जान की। इस्मत जुगताई के साथ तो बहुत दोस्ती दोस्ती, थी। अम्मी जान दोस्ती अब्बा जान के फौत होने के बाद गई भी थी उनको मिलने, इस्मत को। जी हाँ, मेरी नानी और वो गई थी दोनों। वो इस्मत और मंटो साहब तो बॉम्बे से मुकदमा लड़ने भी लाहौर तशरीफ लाया करते थे। जी जी। एक लफ्ज बोलते हैं मुखर्रब अखलाक, अखलाक को खराब करने वाला। मंटो तो अखलाक को सुधारने वाले थे। जी उनके कलम में तो वो तो मुआशरे की इस्लाह के लिए लिख रहे बिल्कुल, थे। उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी मुआशरे में जो गलत काम हो रहा होता था, और जो उसमें कुछ भी इसमें खुद भी पर्सनली भी बहुत वो साफ सुथरे इंसान थे। इवन लिबास के मामले जी में, लिबास के मामले में इवन रहन सहन के मुकाबले तो उनसे दाग धब्बे या माशरे के भी नहीं बर्दाश्त होते थे ना उनसे। आपने और एक और बात उनमें बड़ी अच्छी थी कि हमारा जो जी मोहल्ला था ना लक्ष्मी मैंशंस का, जी उधर अगर कोई ककड़ी वाला आया है, कोई लच्छे वाला आया है, तो उधर अगर सारे वो जो क्वार्टर में बच्चे रहते थे ना, वो भी सामने आ जाते होते थे। और अब्बा जान सबको चीज़ जो हमें खरीद के देते थे ना, उन बच्चों को भी साथ देते थे। ये ऐसे ही है। लक्ष्मी मेंशन में आके क्या जी। फरमाया? जी तो आपका अपना बचपन भी वहीं गुजरा होगा। हाँ हमारी तो पैदाइश ही लाहौर की है ना, हम दोनों की। खत्म कर और ये बॉम्बे की है। मैंने कायद आज़म पे ऐसी खूबसूरत तहरीर कहीं और नहीं पढ़ी। एग्जैक्टली हमारे एक फ्रेंड्स थे, फरमाइए। वो भी यही कहते थे, कहते हैं जो ये कायद आज़म के ऊपर तुम्हारे अब्बा ने लिखा है ना, यस दैट इज द बेस्ट। यस, ड्राइवर के एग्जैक्टली मैं भी यही Best. अर्ज कर रहा हूँ। मेरा साहब मेरा साथ कमाल कमाल की तहरीर है। उसमें कायद आज़म जो हैं वो बतौर एक इंसान के, बिल्कुल बिल्कुल एक बाप के, एक भाई के, और वो सामने आते हैं, और उनका कातिल जो है वो उससे बड़ा बड़ा होता और हुआ। वो आज़ाद ड्राइवर से बातचीत में सारा कुछ उनको पता चला। आज़ाद ड्राइवर था ना, जो एक्टर ये हनीफ आज़ाद, वो कायद आज़म के ड्राइवर रहे थे। मंटो साहब को पढ़ने लिखने के रास्ते पे लाने वाले बारी साहब, जी 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 जो अमृतसर में मसावात अखबार के एडिटर बन के आए थे बिल्कुल 1933 में। तो उनका तो इंतकाल हो गया 1949 में। उनके साहबजादे मसूद बारी, कुछ राब्ता रहता था आपका उनसे? नहीं नहीं उनकी उनसे अम्मी से था, मिसेस बारी से। अम्मी जान के साथ काफी दोस्ती थी उनकी। जी जी, क्योंकि मंटो साहब ने कहीं ये भी कहा कि अगर बारी साहब नहीं होते तो मैं अमृतसर में डाके मार रहा हूँ। क्योंकि उनकी तबीयत में ऐसा चुलबुलापन था, उनके बचपन में उनको टॉमी कहा जाता था, क्योंकि वो शरारती थे, और लिबास और इसमें बहुत है, ये वैसी उनकी तरह की शरारती बहुत है। और वो कहते थे ना, ये तो मेरी बेटी है, ये तो कहती है कि साडे गरीबा ने कार है, प्रिंसेस पैदा हुई है, शहजादी। इनको प्यार से जुजिया जी कहते थे अब्बा जान, जुजिया जी। मंटो साहब पे पहले यहाँ फिल्म बनी, सरमद खुसट ने बनाई, और फिर आप तशरीफ लेके गई थी, उसकी इफ्तिताही जी। जो स्क्रीनिंग थी, नंदिता दास जी उन्होंने मंटो बनाई। आपके ख्याल में पाकिस्तान वाली फिल्म बेहतर रही है या उनकी नंदिता दास वाली मंटो? वो दोनों मुख्तलिफ अदवार पे बनाई हुई है। वो उसने बॉम्बे, उनकी जो वक्त जो बॉम्बे में गुजरा था ना, उसके हवाले से बनाई थी, और जो कहानियाँ भी उसने चुनी थी वो भी बॉम्बे रिलेटेड थी। और जो सरमद की फिल्म थी वो पोस्ट पार्टीशन की। इसीलिए शायद उसमें मंटो के किरदार का वो जो हिस्सा फ़ाल है वो जी, ज़रा जी, कम है, जी। और थोड़ा जद्दोजहद करने वाला ये सरमद की फिल्म में ज़्यादा आ गया है। जी। और जो फैलता हुआ, बढ़ता हुआ कद में, और शोहरत पाता हुआ, और नामवरी को छूता हुआ, वो वक्त भी बेहतर था, माशी तौर पे भी बेहतर था, और इधर आके तो फिर मुश्किलात का सामना और ट्रॉमा पार्टीशन का और सब कुछ जुड़ा हुआ। तो मंटो ने पार्टीशन को
बहुत गहरे तौर पे महसूस बाबा जो उन्होंने वो ज़हमत महरे दरख्शां जो वो लिखा हुआ तो है, सारा किस्सा लिख दिया ना जी, मुकदमे जी। का, जो कुछ उन पे गुजरी ठंडा गोश्त के हवाले से। हाँ जी। ये जो स्याह हाशिए का एक तजुर्बा था, जो बात वो 6 या 7 सफ़े के अफसाने में करते थे, आधे सफ़े में हाँ, करते ये किसी लगता है ना कि जैसे अपने आप को चैलेंज कर रहे थे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, इतना इख्तिसार से भी बयान कर सकता हूँ। तो वो अपने लिए चैलेंजेस खुद ही लेकर आते थे कि मुझे एक जैसे रेडियो में रेडियो के वक्त पे टाइपराइटर पे कहानी अपनी लिख लेते थे, वैसे जो इनके अफसाने होते थे वो तो हाथ से लिखते थे और कागज़ के ऊपर पेन या पेंसिल के साथ। पेंसिल के साथ लिखते थे और घड़ी भी पेंसिलें होती थी सारी, 4-5, ताकि तसलसल उनका ना टूटे। अगर एक खत्म हो गया तो वो दूसरी पेंसिल फटाफट उठा ले। बहुत छोटा छोटा, बिल्कुल बारीक, मैंने तहरीर देखी है। इतनी हसीन उनका खत था ना, बहुत खूबसूरत। तो आपने देखा कि ये वो मुआशरा जो मंटो को पे तनकीद करता था, जो मंटो को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता उनकी अजमत को तस्लीम करना शुरू किया। मंटो पे डाक के टिकट जारी किए गए, मंटो को सरकारी अवार्ड दिए गए, मंटो पे जो है फिल्में बनना शुरू हुई, लिबास के ब्रांड मंटो के नाम से जो है वो जारी कर दिए। तो आपने इस तब्दीली को कैसे महसूस किया? फनकार अपनी मौत से ख़त्म तो नहीं होता, उन्होंने खुद कहा था कि शायद सादत हसन मर जाए, मंटो जिंदा रहे। हमें तो बड़ी खुशी होती है देख के कि अब एक्नॉलेजमेंट होती है हर जगह पे, मगर अफसोस भी होता है कि जब वाकई ज़रूरत थी, क्योंकि अम्मी जान को तो काफ़ी मुश्किल पेश आई थी, उनको तो ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन मिलती थी ना कुछ, तो हालात तो बहुत मुश्किल थे। और वो पब्लिशर्स तो कहते थे कि जी हम तो कोई पैसे बना ही नहीं रहे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ देने का। अब तक बना रहे हैं। ये जो मंटो साहब के अंग्रेजी में तर्जमे हुए हैं, उनका म्यार आपको कैसा लगा? खालिद हसन ने शुरुआत की थी और एक किस्म का इंट्रोड्यूस किया था, तो अब ये है कि बहुत सी ज़बानों में उनके तर्जमे हुए हैं। कोरियन में भी हुआ जी, कोरियन था ना? कोरियन का तो नहीं मुझे बंगला पता, में याद तो नहीं। बंगला का तो मुझे पता- जापानीज में वो हुआ तो हुआ है, होगा। इटली में भी, फ्रांस में भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वो हुए हैं। आलमगीर का रूसी अदब नंबर उन्होंने शाये किया है, वो सारे का सारा मंटो साहब का ट्रांसलेट किया हुआ था। तो उनकी उम्र 22 वर्ष थी। जी 42, जी बिल्कुल। तो उन्होंने गाइड भी तो किया होगा ना बारी साहब ने, लास्ट डेज ऑफ द कंडेम्ड कंडेम्ड। हाँ विक्टर ह्यूगो का वो उन्होंने उनसे तर्जमा करवाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल वो बड़ा मज़ेदार किस्सा है, जो वो सारे अमृतसर शहर में उसके पोस्टर्स लगा रहे थे जारियत के नाम पे, पता नहीं आखिरी कि मंटो के अंदर जो वो एक बगावत का एहसास था, जी वो तो था, जी। वो तो था, वो तो नया कानून में साफ नजर आता है। हाँ, उनके वालिद भी ज़रा सख्त थे ना, सख्त गीर थे, और वो ये वालदा उतनी ही नरम थी। जी, वालदा का इसमें बहुत- ग्रामी सरदार बेगम था और वालिद साहब का इसमें ग्रामी गुलाम हसन हाँ जी मंटो उनका नाम था। वो मंटो साहब के कम उम्री ही में उनका इंतकाल हुआ 1930 में, लेकिन मंटो साहब ने जहाँ जहाँ जिक्र किया बताते हैं कि सख्त थे, जी। कभी उनके ड्रामे की चीजें तोड़ फोड़ के जब फेंक छत पे चढ़े होते थे पतंगबाजी कर रहे हैं, तो जब पता चला किसी ने ऐसे में मजाक में ही कह दिया कि मियाँ साहब आ गए, मियाँ साहब, तो उधर से छलांग मार दी और पता नहीं पाँव मुड़ गया क्या क्या। ये जो फनकार जो काम करता है, ये मुआशरे के लिए कितना कीमती है, कितना अहम है? अहम तो है, जो मतलब जैसे भी वो देखें जी, एक तो ये हिस्ट्री बन जाता है, जी अहम तो है। हिस्ट्री बन जाता है, जैसा मुआशरा है हमारा, उसके मुताबिक आप फिर उसी तरह तख्लीकी काम तो होता रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। आप बहनों से तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमें एक वक्फे पे जाना है, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। सदरंग में एक बार फिर से खुशामदीद, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं सादत हसन मंटो साहब की साहबजादियों से। नुसरत आपा, ये जो
کہا جاتا ہے کہ امریکی سفارت خانے والوں نے رابطہ کیا منٹو صاحب سے جی۔ اور ان کو اس زمانے کے اعتبار سے اچھی پیشکش کی، تو انہوں نے ان کی بات تو نہیں مانی، الٹا انکل صاحب کے نام پر صاحب کے قریب خط لکھ دیے۔ میری جو خالہ ہے وہ میری ساس بھی ہے نا، تو ان کو تو یاد ہے کہ وہ گاڑی آئی تھی وہاں لمبی سی، اور پھر یہ انہوں نے پیشکش کی تھی ابا جان کو، جی اور کہتے ہیں میں نے بڑھا چڑھا کے کہا کہ چلو شاید اتنے پیسے نہیں دیں گے، تو وہ مان گئے۔ وہ ایسا پر بندہ گھر جو- والوں کو بڑا رنج ہوا، مانے نہیں کیونکہ پیسے مل رہے تھے۔ اب جو ٹوبا ٹیکسنگ والا کیٹ بال کا کتا، بہت ہی دلچسپ کہانی ہے، جس طرح جی، نظارہ باندھا ہوا ہے۔ ہاں جی، اس وقت پاکستان میں بہت کم لوگوں کو علم تھا کہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ کیسے ہوگا، اور دو ملکوں کے درمیان جو اس پہ ہے، تو یزید افسانہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ساتھ اور نام بھی نہیں لیتے تھے، وہ انسان کہتے تھے اس شخص نے یہ کیا ہے، اس مذہب کا اس کا اتنا لازمی نہیں تھا کہ وہ کون سے مذہب کا ہے اور کون سے مذہب کا نہیں ہے۔ وہ اس تعصب سے بالا تھے۔ جی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے کشمیری ہونے پہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ بالکل بالکل۔ کشمیری ہونے، وہ تو خیر معاف کیجیے گا، پنڈت نہرو بھی کرتے تھے۔ پنڈت نہرو نے وہ بھی کہا کہ بڑا اقبال مزیدار خط لکھا ہوا ہے نا پنڈت نہرو کے نام پنڈت خط۔ نہرو کے نام۔ واقعتاً ساتھ منٹو جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے ادب کو سمجھنے کے، ادب کو پڑھنے کے ڈھنگ بدل دیے۔ یہ ٹائپ رائٹر کا کیا قصہ ہے؟ ایک ٹائپ رائٹر تو ہمارے پاس ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے ایک اور بھی خریدا ہو کسی وقت۔ وہ اگر آپ کے پاس ہے تو پھر وہ تو مستند ہے نا کہ وہ منٹو صاحب جی کا ہے۔ جی ان ٹائملی ڈیتھ تھی، 42 جی۔ برس تو کوئی عمر جی۔ نہیں ہوتی جانے کی۔ سینسیٹیو تھے تو اس وجہ سے میرے خیال میں سب اپنے اوپر لیتے نہیں ہاں، اور آخری 4-5 سال تھے ان میں ان کی طبیعت بھی تو نہیں ٹھیک رہتی تھی نا، ہسپتال جانا اور باہر نکلنا، اور پھر کہ ان کی کتابوں کی رائلٹی وغیرہ کم از کم صفیہ آپا کو تو نہیں ملی۔ ہاں نہیں امی جان کو تو نہیں ملی تھی ہمیں، بلکہ بعد میں جب سنگے میل نے چھاپے ہیں ان کی کتابیں تب سے ملی۔ اس کی ملتی رہی ہے۔ صحیح۔ آپ تینوں منٹو صاحب کو کیا کہتے تھی؟ ابو کہتے تھے، ابا کہتے جان۔ تھے؟ ابا جان۔ ابا جان۔ ابا جان، امی جان، ابا اور وہ جان۔ چاہتے تھے کہ ہم ان سے پنجابی میں بات کریں۔ اچھا، کیونکہ ہمارے بڑے سارے گھر میں پنجابی بولتے تھے، بچوں پہ یہ مسلط کیا ہوا تھا کہ اردو میں بات کریں۔ لیکن وہ وہ آئے تھے نا مسعود قدر پوش صاحب ہمارے گھر آئے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ منٹو کے گھر میں اردو بولی جا رہی۔ کہتے ہیں منٹو یار ہے کہ تو اردو بولنا میں آنا بچیاں دے نال، پنجابی بول، پھلن گیاں بچیاں۔ منٹو صاحب کے ہاں لفظوں کی فضول خرچی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرین اس طرح کیا ہوا تھا نا، اور اس کا پھر الٹیمیٹ آپ کو اگزامپل اس میں ملتا ہے، یہ جو افسانچے جس کا سیاہ حاشیہ۔ سیاہ حاشیے میں۔ جب منٹو صاحب کی وفات ہوگی تو آپ تینوں بہنوں کی پرورش کا بوجھ تو صفیہ آپا پہ آ گیا، کیسے انہوں نے اس کو مینج کیا؟ ہمارا اسی لیے تھا کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، میری نانی بھی میرے ساتھ رہتی تھیں، ہمارے ساتھ رہتی تھیں، اور ہماری نانی کو نا برٹش گورنمنٹ سے ان کو پینشن ملتی تھی اچھا، جو ٹھیک ٹھاک تھی، کیونکہ ہمارے نانا جو تھے نا وہ ایسٹ افریقہ میں وائل آن ڈیوٹی پولیس سروس میں تھے، تو ان کی وہاں شہادت ہو گئی تھی، کوئی رائٹس وغیرہ ہوئے تھے، ٹھیک۔ تو پوری زندگی ان کو ملتی رہی، اور وہ پھر آپ نے تعلیم پائی کہاں میں، کن کالجز میں؟ ہم لوگوں کو اچھے سکولز میں ہی ڈالا گیا، تو میں سیکرٹ ہارٹ میں تھی، یہ لوگ کوئن میریز میں تھیں، اور پھر اس کے بعد کینیڈ کالج میں۔ کیونکہ امی جان اتنی پڑھی ہوئی نہیں نہ تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ ہمیں ایجوکیشن اچھی ملے، ان کا یہ بڑا اس پہ سٹریس تھا۔ جی۔ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ادبی رجحان ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا ایک تو اگر ہم کوشش بھی کریں تو اس طرح کی تو صدیوں میں ایک کوئی ٹیلنٹ آتا ہے، جی ہاں، تو ہم تو ان کے سائے تلے ہم تو کچھ بھی نہ ہوتے۔ اس میں پینٹنگ کا آیا تھا، اچھا، She used to گانے paint. کا ہے، اور ان میں گانے کا پھر ہے نا بھائی، کچھ نہ کچھ تو آیا کچھ نہ کچھ تو ہے نا، حصے میں۔ تخلیقی اظہار جو ہے اس کی۔ اس میں آپ نے اس کا ذکر کیا نا کہ پاکستان کی حکومت نے تمغہ بھی دیا اور اسٹیمپ بھی کیا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر
पाकिस्तानी हुकूमत ये कदम ना उठाती तो हिंदुस्तान ने क्लेम कर लेना था। जी हाँ, लक्ष्मी मेंशन मैंशंस वहाँ पे तख्ती लगी है जहाँ मंटो साहब जी लगी थी। अब तो वहाँ पे कारोबारी लोगों ने वहाँ हॉल रोड जो है ना वो सारा अंदर दाखिल धजिए कर उड़ा दिए। घर ही गिरा दिए। वो तख्ती उतर गई है क्या? तख्ती क्या घर ही नहीं है? वो घर ही नहीं है। तो तख्ती कहाँ जाएगी? घर घर नहीं है। गिरा दे। महजब कौमें वैसे ऐसा नहीं किया करती। मंटो साहब के बारे में कहा जाता है, आपने शायद आपा देखा हो, कहते हैं वो कुर्सी पे पाँव ऊपर रख के जी, बैठ के लिखते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और और आप हमारी एक बड़ी पुराने मिलने वाली वो तो कहती थी, बताती थी, कहती है कि हम सब खेल रहे होते थे और अब्बा जान अपने मसरूफ, और फिर सवाल का जवाब भी देते थे। उनके उसमें खलन नहीं आता था। हाँ, नहीं वो ये नहीं कहते आराम चाहते थे से। कि खामोशी हो तो फिर मैं लिखूं। हाँ बिल्कुल जैसे है उसी तरह ही ठीक है। साथ में पकौड़े भी बना रहे हैं, कई दफा तो वो भी तल रहे होते थे। हमने तो ये भी सुना है कि कई दफे घर के कामकाज में सफिया आपा का हाथ भी बटाते थे। हाँ जी बिल्कुल एक्चुअली उनकी इस्त्री करना, उनके कभी बाल संवारना ये भी करते थे। देखो क्योंकि अमजन बड़ी सादा थी, सही। बहुत सादा थी। अब्बा जान तो फिर तो मैचिंग चूड़ियाँ लानी उनके लिए, फिर जूतियाँ भी वो सिलेक्ट करके लेकर आते थे अम्मी जान के लिए। शायद पाकिस्तान में आके उस तरह का माहौल ज्यादा ना रहा हो, वरना बॉम्बे में तो वो अशोक आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं, बड़े बड़े अदाकार आ रहे हैं। एक दफे तो बताया गया है कि गालबन आपकी किसी खाला ने अदाकारा नरगिस को भी घर पे बुला लिया था। हाँ जी। इन्हीं की इसी की सास ने। मंटो ने नावल नहीं लिखा, उनका एक लिखना शुरू किया था, बगैर वो उन्वान लिखा था के। बगैर उन्वान के। हाँ वही। उसकी इसमें शाया नहीं कभी हुआ है। शायद हुआ भी है और मेरे इल्म के मुताबिक बंगला में उसका तर्जुमा भी हुआ है। लेकिन गालबन जो मंटो साहब की तबीयत में बुर्राकी थी, जी वो नावल बहुत डिसिप्लिन और बहुत लंबे अरसे का, तवील हो जाता है। वो तो उन्होंने अपने आप को मैं ये भी चैलेंज किया होगा कि इतना इख्तिसार के बाद कोई लंबा भी लिखूं तो। मंटो साहब ने एक फिल्म में भी काम किया, हाँ जी, 8 दिन। और उसमें उन्होंने एक जो शेल शॉट सोल्जर का। आपने वो फिल्म देखी? नहीं हमें तो नहीं। एक्चुअली वहाँ के जो स्टूडियोज भी थे ना, कोई जल वल गए थे तो वो कुछ रिकॉर्ड्स पीछे रहे नहीं। हाँ, फसादात में। जी। फसादात और वो हमारी जो हिस्टोरियन है आयशा जलाल जी, कज़न जो हमारी है, उसने बड़ी कोशिश की थी कि दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से कुछ मिल जाए, मगर वहाँ पे उनके पास भी कुछ नहीं। आयशा जलाल ने, अगर मैं गलती नहीं करता तो मंटो साहब को उन्होंने भी अंग्रेजी में तर्जमा किया है। कुछ तर्जमा नहीं किया उसने, अब्बाजान पे एक बायोग्राफी लिखी है। वो जो अंग्रेजी वाली है, जी, जी। सेंटिनरी पे जो है, जी, जी। और वो संगे मील ने शायद की है। हाँ जी, लाहौर में, पाकिस्तान में संगे मील ने की है, वहाँ पे तो उसके हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। हाँ, मैंने वो पढ़ी भी थी और उसमें बहुत ही नायाब तस्वीर आपकी दादी की और दादा की, और फिर मंटो साहब के बचपन की, जो शायद उनकी सबसे प्यारी तस्वीर है, जिसमें वो रूमी टोपी जो है वो सुर्ख वाली वो भी पहन रखी है। वो भी उसी वो आयशा जलाल वाली किताब ही में वो तस्वीर थी। मंटो साहब के जिंदगी में पिटे हुए रास्तों से हट के चलने की जो रवश थी, आप बहनों की जिंदगी पे वो किस तरह असरअंदाज हुई? हम लोगों ने उनका वो दौर देखा ही नहीं, हम लोग 4-4, 5-5 साल के थे। मंटो साहब की शादी तो 39 में हुई है। हाँ जी, अप्रैल 39 में। पता नहीं किस तरह काबू आ गए थे, मगर उस आई थिंक होना था। तो सुना कि दादी जान इनके घर पहुंच गई जी, और उन्होंने कहा था कि तुम क्या बेतरतीब जिंदगी गुजार रहे हो, किस घर में ये रह बीवी होगी तो मैं किस घर में ये रह रहा, खुद ही सारी जो दाद अब्बाजान ने खुद ही लिखती हुई है मेरी शादी के नाम से उन्होंने सब लिख बहुत दिया ही हुआ है। खूबसूरत है, बहुत अच्छी। खूबसूरत भी है और कैसी बेतकल्लुफी से बताते चले गए। फलां सेठ के पास गए, उसने भी कहा पैसे नहीं है, फलां के पास गए, उसने भी कहा पैसे, उनसे पैसे लेना थे, उनसे मांगने नहीं गए थे, अपना हक था। तो वो कहते कि नहीं है,
तो कहने के फिर एक से कहा कि मैं इधर ना तुम्हारे गेट पे भूख हड़ताल कर दूंगा, फिर तुम्हारी जो है ना वो भात दौड़ेगी। तो फिर उसने कुछ किया। जी, उसने वो फिर घर पे भेज दिया था ज्वेलर की सिलेक्ट करने। और मेरी नानी जान ने भी देखा कि उसके तो हालात इतने अच्छे नहीं है, तो उन्होंने कम चीज़ें ली। तो बाद में वो कहने लगे कि नहीं, इसने मेरे पैसे देने थे, आपने एक और चीज़ें ले लेनी थी। अगर उसने कह ही दिया था तो आप और ले लेते। हाँ, उसने तो मेरे पैसे देने हैं और पैसे अब नहीं मिलेंगे। नहीं, और पता है, हमारी नानी को दामादों के साथ जरा उनके दिल में कुछ फरमाइश थी कि इनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना। वो खुद कहते हैं कि मैं जब मुझे बताया गया कि वो सफिया आपा के घर वालों ने ये जो प्रपोजल है, शादी की तजवीज़ है, ये कबूल कर लिए, तो कहने मैं हैरान हो गया कि मैं तो सब कुछ बता आया हूँ। जो कुछ मैं करता हूँ, मेरी नौकरी जो है वो आर्जी है और तनख्वाह कभी कभार मिलती है, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो हमारी नानी और दादी की दोस्ती हो गई थी, इस तरह वो। और फिर ये भी होगा ना कि जो आपकी दादी थी, उन्हें मंटो साहब से जो प्यार था बहुत। माएँ जो है उनके दिल अगर इतने बड़े जितने माओं के होते हैं, अगर मुआशरे के भी हों, तो मेरे ख्याल में कोई बच्चा जो है वो निगलेक्टेड या गफलत का शिकार नहीं खुद को समझेगा। मंटो साहब में उनकी मोहब्बत और शफकत की वजह से ही वो संभले रहे, वरना जैसे वो खुद भी कहते हैं इतनी लाउबाली तबीयत ही किसी तरफ भी जा सकते थे। मंटो ने जिंदगी को बहुत करीब से देखा जी, ये तो क्लियर है। हाँ जी, ये तो क्लियर है। उनका गालबन वो बहुत जो बालाई तबका होता है, अशराफिया वगैरह, उसका कोई मुतालिया कोई उनका वैसा को उनके साथ सिर्फ मेरे ख्याल में एक में ही है, वो भी काफी मजाक ही हो रहा है, ऊपर नीचे और दरमियान में। वो उस पे जो उसमें जो मुकदमा भी चला कराची में, वजह उसकी ये थी कि मंटो साहब को खबर मिल गई थी कि बड़े साहब का वो हकीकी के साथ। जी जी। तो बड़े साहब को गुस्सा आ गया, सरकार गुस्से में आ गई। तो वो गए और उन्होंने कहा कि भाई मैंने लिखा अफसाना, करो जुर्माना और मुझे फारग हो। लाहौर से कराची गए थे। जो नासरा आपा की मियाँ थे, ये मंटो साहब से किस बात पे खफा रहते थे? अंदरूनी कहानी बताएं आप बताइए। आप हमारी फूफी बहुत अच्छी थी। वो तो थी जी, वो बहुत अच्छी थी। तो लो भैया, मैंने मालूम होता है कि बहनों से कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जो वो अपने घरेलू जो होते हैं ना रिश्ते नाते, उनके मद्देनज़र उसका जवाब नहीं देना चाह रही, लेकिन हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। हमारे लिए तो वो सादत हसन मंटो अहम है जो हमें 300 अफसाने ऐसे देके गए हैं कि एक तालिब इल्म के तौर पे मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे लिखने वालों के यहाँ 1, 2, 3 अफसाने मिल जाते हैं। मंटो के यहाँ दर्जनों अफसाने ऐसे मिल जाएंगे कि आपको समझ नहीं आती कि ये या ये। और खास तौर पर उनके जिन अफसानों पे इतने ज्यादा इतराजात किए गए, मसलन बू और धुआं, इतने नाजुक मौज़ूआत पे इतनी एहतियात से। एक उनका अफसाना है कादरा कसाई। हाँ जी। अब वो उस नफ्सियात के उस जाविये पे रोशनी डालता है जहां पे अब नफ्सियात की रिसर्च अब पहुंच रही है, और मंटो साहब ये बातें कह चुके। एक उनकी फुंदने थी, वो मैंने पढ़ने की कोशिश की, मुझे तो इतनी सी भी नहीं समझ आई। लेकिन डॉक्टर अनवर सज्जाद फरमाते थे कि मैं फुंदने ही से निकला हूँ, क्योंकि वो अलामती अफसाने में नुक्ता आगाज था। मंटो साहब उस रवायत की भी पहली ईंट उन्होंने फुंदने ही में रखी थी। आप बजाय फरमानी, मैंने भी जब इब्तदाई तौर पे पढ़ना चाहा तो मुझे भी यही कैफियत मेरी कुछ फिर पल्ले नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है। आप तीनों काबिल एहतराम खातीन का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये एजाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न के हिस्से में आया कि सादत हसन मंटो की साहबजादियों ने इस स्क्रीन को जो है वो इज़्ज़त बख्शी है, रौनक दी है। मैं दिल से आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपका भी शुक्रिया। आपका भी बुलाने का। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आज हम सादत हसन मंटो साहब की
साहबजादियों से मुलाकात कर रहे थे। कुछ बातें सादत हसन की हुई और कुछ मंटो साहब की। तो हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें हमारा ये प्रोग्राम देखा। सदरंग में अगली नशस्त में किसी और शख्सियत से मिलेंगे और अदब की, मुसव्वरी की, मौसीकी की, फ़नून आलिया की, सकाफ़त की बातें होंगी। सलामत रहिए। आदाब।